براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں پھر آج اس نے یہ موقع ہم سب کو دیا ہے تاکہ اس کے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ خدا کے کلام کرنے کا ایک مقصد ہے کہ وہ اپنی بات انسانوں تک پہنچاتا ہے اور تمام انسان اس کی مخلوق ہیں۔ یہ اس کی محبت کا نشان بھی ہے تاکہ انسان جو اپنے محدود پن کی وجہ سے عقل محدود، ادراک محدود ہے، وہ باتیں جو خدا تعالیٰ سے متعلقہ ہیں ان کی پہنچ، انسانی ادراک اور سوچ کی پہنچ ان تک نہیں ہے۔ اس لیے خدا ہماری محدود عقل کے مطابق ہمیں اپنی مدد باہم پہنچاتا رہتا ہے تمام نسلوں کو کہ وہ کلام جو ہم نہیں سمجھ سکتے وہ ہمیں سمجھائے۔ اور الہام کا مطلب بھی چھپی ہوئی بات، مخفی بات ہے، اور خدا ان باتوں کو کھولتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے واقف ہو سکیں۔ اور جب ہم ان ادیان کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم الہامی ادیان ہیں، خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو خدا کا الہام، خدا کی بات جب انسانوں تک پہنچتی ہے تو اس کا ذریعہ، ایک ذریعہ خدا کے بندے بندیاں، خدا کے انبیاء، جن کے وسیلہ سے وہ اپنا کلام پہنچاتا ہے۔ اور جب اس کا کلام پہنچتا ہے انسانوں تک تو پھر دو طرح سے رد عمل آتا ہے۔ ایک ہے اس کلام کو قبول کرنا، اس کے بھیجے ہوئے شخص کو یا مقدس ہستی کو جو اس نے بھیجا ہے اس کو قبول کرنا یا اس کو قبول نہ کرنا۔ اور جب ہم کلمت اللہ کی بات کرتے ہیں، حضور المسیح کی بات کرتے ہیں، تو جب وہ اس دنیا میں آئے تو آج تک ان کی ذات اقدس کے تعلق سے قبولیت بھی ہے اور ناقبولیت بھی ہے۔ ان کی تعلیم کے تعلق سے قبولیت بھی ہے اور قبول نہ کرنے والے بھی ہیں، رد کرنے والے بھی ہیں۔ اور جب وہ اس زمین پر آئے اس وقت ہی یہ معاملات شروع ہو گئے تھے جو آج بھی ہم اگر سیکھنا چاہیں تو ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ جب ان کی ذات کے بارے میں خدا نے پیغام اس زمین تک پہنچایا تو اگر ہم لوکا کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے، وہاں پر ایک بزرگ شخص جو ہیکل میں رہتا تھا اس کا نام تھا شمعون۔ اور اگر لوکا دوسرا باب اور اس کی 34ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، جب اس نے حضور المسیح کو اپنے بازوؤں میں لیا تو انہوں نے یہ الفاظ کہے، خداوند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے 34ویں آیت میں وہ کہتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ رکھا یہ اعمال کی کتاب سے بھی ہے مخالفت کے تعلق سے، اور لوکا کی انجیل میں بھی ہے۔ اور شمعون نے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی۔ اور جو دوسرا حوالہ ہے وہ اعمال کی کتاب 4 باب میں سے ہے کہ تو نے روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے باپ خادم داؤد کی زبانی فرمایا کہ قوموں نے کیوں دھوم مچائی اور امتوں نے کیوں باطل خیال کیے، خداوند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سردار جمع ہو گئے۔
तो मसीह की मुखालफत के ताल्लुक से ये बहुत ही अहम हवाला जात हैं जो उस दौर के लोगों के सामने बहुत वाज़े तौर से रखे गए थे कि मसीह के ताल्लुक से बहुत सी ऐसी हस्तियां उठ खड़ी होंगी, ऐसे असातिज़ा, ऐसे इंसान उठ खड़े होंगे जो मुखालफत करेंगे। और अगर हम यूहन्ना की अंजील में आएँ तो यूहन्ना की अंजील में पहला बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। अब यहाँ पर जो अपनों से मुराद है वो बनी इसराइल है। वो उनके दरमियान में आया बतौर मसीह। जो पहली दो मैंने आयत रखी कि मसीह, ये जो तसव्वुर मसीह का है ये यहूदी कौम में पाया जाता था कि मसीह मसा किया हुआ, अलग किया हुआ, जो नजात दहिंदा के तौर पर, छुड़ाने वाले के तौर पर, बादशाह के तौर पर आएगा। लेकिन लिखा है वो अपनों में आया। लेकिन जब वो आया तो उस वक्त तक मसीह का जो तसव्वुर है इसके ताल्लुक से बहुत से असातिज़ा ने, बहुत से उलमा ने गलत तालीमात बना रखी थी और वो अपनी अक्ल के मुताबिक, अपने उस वक्त के फ़लसफ़ा के मुताबिक उनकी ज़ात को परखना चाहते थे, समझना चाहते थे, कबूल करना चाहते थे। लेकिन अफसोस कि जो कुछ लिखा हुआ था उनके ताल्लुक से उन पेशनगोइयों की रोशनी में उनकी ज़ात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे और मसीह की मुखालफत करने लगे, रद्द करने लगे। वो अपनों में आया लेकिन अपनों ने उसे कबूल ना किया। तो आज भी ऐसा ही है। बहुत से लोगों तक हुज़ूरुल मसीह के ताल्लुक से जो कलाम खुदा की बातें हैं वो पहुंचती हैं लेकिन फिर भी कबूलियत नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है आज के दौर में जब बरगश्तगी का दौर है, तारीकी का दौर है, आखिर ज़माना है। ज़रूरी है कि हुज़ूरुल मसीह की ज़ात के ताल्लुक से जो मुखालफत पाई जाती है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, जो झूठी तालीमात हैं, उनसे नज़र हटाकर वो अपनों में आया, अपनों ने उसे कबूल ना किया। तो आया तो है, तालीम पहुंच चुकी है, लेकिन वो लोग जिन्होंने ज़हनों को असल तालीम से दूर कर दिया हुआ है वो कबूल करने की बजाय मुखालफत की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम उनकी ज़ात के ताल्लुक से देखें, मत्ती की अंजील 26वां बाब और उसकी 59th वर्स में, वहाँ पर जो मुखालफत करने वाले थे वो इस हद तक आगे चले गए कि उनकी शख्सियत के खिलाफ, उनकी ज़ात के खिलाफ झूठी गवाहियाँ ढूंढने लगे और फिर उनको अदालत झूठी गवाहियाँ ढूंढी, ना मिली। उसके बाद कुछ झूठे गवाह उठ खड़े हुए और उन्होंने ऐसी बातें, झूठी बातें कही जिनकी वजह से उन्हें अदालत में मसलूबियत तक जाना पड़ा। लूका की अंजील 23वें बाब के 10वीं आयत में हम देखते हैं कि वहां पर उनकी बेइज्जती की गई, ठट्ठों में उड़ाया गया और मुखालफत की इंतहा कर दी गई। और जब हम दीगर आयात को देखते हैं, मत्ती की अंजील के आखिरी अबवाब में, लूका की अंजील के आखिरी अबवाब में, के इंसाफ करने वाले जब अदालत में फैसला पहुंचा तो 27वें बाब में अगर आप आ जाए तो वहां पर लिखा है, हुक्मरान ये जानते थे कि हसद के वसीला से जो उस दौर के मजहबी रहनुमा थे, मजहब के ठेकेदार बने हुए थे, उन्होंने हसद में पकड़वाया। और जो मुंसिफ है वो जानता है, लेकिन इसके बावजूद वो उनको खुश करने के लिए, चूंकि उस दौर में वो जो मुखालफीन थे उनका असर सूख ज्यादा था, लेकिन इसके पीछे खुदा का मंसूबा भी है। लेकिन मैं मुखालफत की बात, आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि मुखालफत की इंतहा के जो इंसाफ करने वाला है वो जानता है कि हुज़ूरुल मसीह के खिलाफ हसद में ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उन्हें पकड़वाया गया है, लेकिन वो
एक रास्तबाज को गुनहगार ठहरा देता है सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए। लेकिन ये तमाम बातें लिखा इसलिए वकूफ़ पज़ीर हुई कि आज हमारे लिए सीखने का सबब हों। लेकिन इन तमाम मुखालफतों के बावजूद कबूल करने वाले, उनको मानने वाले भी मौजूद थे, और वो मानने वाले उनके शागिर्द कहलाए, सहाबी कहलाए। और अगर हम लूका की अंजील में जाएं और उसका 27वां बाब देखें तो वहां पर हमें मिलता है, लूका की अंजील नहीं, मत्ती की अंजील में और लूका की अंजील में भी हमें नजर आता है कि 2 डाकू मसलूब किए गए थे। मुख्तसर करूंगा, 2 डाकू मसलूब किए गए थे उनके साथ, और एक ने यह कहा कि जब तू अपनी बादशाहत में आए, मसाया मसीह बादशाह, तो मुझे याद करना। और यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तू आज ही, कबूल करने वालों की बात कर रहा हूं जल्दी से, चूंकि और भी हवाला जात हैं, तो आपको ये लूका की अंजील में, मत्ती की अंजील के आखिरी अबवाब में ये सब बातें मिल जाएंगी। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मसीह नजात दहिंदा खुदावंद कबूल कर लिया, और मसीह फरमाते हैं तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, और फिर अभी हम कुरान में से भी देखते हैं कि फरमान कुरान इस ताल्लुक से क्या कहता है। खुश आमदीद कहते हैं, बराह रास्त शो फजल रबी में बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी पास्टर दानियल साहब, एक तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, अपने टॉपिक बहुत अच्छा चुना है। इसी तरह से मैं चाहता था शायद आप प्रोग्राम में आगे जवाब दे दें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह को यहूदी लोगों ने कबूल ना किया। क्या खुदावंद यीशु मसीह की जब दूसरी आमद होगी तो तमाम यहूदी लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे? बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या बताती है? सादा सा इसका बहुत ही सादा जवाब है, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। अगर कोई प्यासा है, मुराद ये है जो आना चाहता है वो आए, जो नहीं आना चाहता वो ना आए, आज़ाद मर्जी है। लिखा है नूर तारीकी में चमकता है, मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ। नूर तारीकी में चमकता है, लेकिन तारीकी ने उसे कबूल ना किया, और तारीकी का हुक्मरान, लिखा है कलाम खुदा में कि अबलीस तारीकी का हुक्मरान है। तारीकी के कामों की लिस्ट दी गई है, और यीशु मसीह तारीकी के कामों को इंसानों पर जाहिर करता है जो उसकी कैद में है या उन कामों में शामिल हैं। वो उन कामों के बारे में उन पर खोल देता है कि तुम गुनाह में हो, तुम बंधनों में हो, मैं तुम्हें गुनाहों से, अबलीस की कैद से छुड़ा सकता हूँ। तरीका ये है कि आओ, और जो काम मैंने सलीब पर फिदिया दिया है तुम्हारे गुनाहों का, और लिखा है खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए, और उसने अबलीस को तबाह कर दिया है। अगर आप ओरिजिनल लैंग्वेजेस में देखें तो यहाँ पर जो तस्वुर दिया गया है वो है कि कानूनी हक जो अबलीस का था उसको ख़त्म कर देना, और फिर वो हक खुद यीशु मसीह के पास आया। इसीलिए खुदावंद ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। और फिर लिखा है मसीह में खुदा हमें तारीकी की बादशाहत से अपने बेटे यीशु की रोशनी की बादशाहत में ले आता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि यीशु अल मसीह को खुदावंद और नजात दहिंदा कबूल करना। उसमें कोई शर्त नहीं है। लिखा है ना यहूदी और ना यूनानी, ना आज़ाद और ना गुलाम, ना औरत और ना मर्द, जितनों ने उसे कबूल किया, तमाम उम्मत मुकाशफा की किताब में हमें नजर आती है, अहले ज़ुबान नजर आते हैं, जितनों ने उसे खुदावंद कबूल किया उसने उन्हें खुदावंद के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यूहन्ना की अंजील पहला बाब और 12वीं आयत है, वो ना खून और गोश्त से बल्कि खुदा से पैदा हुए। और पतरस के खत में बहुत वाज़ेह है कि हम ज़ाते इलाही में शरीक हो गए हैं। ज़ाते इलाही में शरीक होने के लिए कोई भी किसी भी शख्स के लिए, किसी मजहब के लिए कोई पाबंदी नहीं है। तमाम के लिए ये मुकम्मल तौर से दावत है। और मसीह के आखिरी जो अल्फाज थे वो ये थे कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको तालीम दो, और जो भी इस तालीम को कबूल करे
वो जिंदगी पाएगा। उसमें यहूदी हूं या गैर यहूदी हूं, जिंदगी का दर सबके लिए खुला है, आज़ाद मर्जी है, आज से लेकर हमेशा तक के लिए। जो भी लोग खुदा का यही तरीका कर रहा है, और इब्राहिम जिनको हम तमाम जो इल्हामी मज़ाहब हैं वो अपना जद्दे अमजद मानते हैं, लिखा है इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। जो मसीह में है वो नया मखलूक है, और पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई। तो मसीह नई बादशाहत लेकर आ रहा है। आज जो भी मसीह में नया हो जाएगा, वो अखीर ज़माना हो या इब्तदाई ज़माना हो, खुदा का तरीक़ाकार एक ही है। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। अगर कोई बात हो तो आप कर सकते हैं। जी, थैंक यू पास साहब। खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी तो फरमाया कि मैं बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूँ। तो क्या वो खोई हुई भेड़ों की जो बात करते हैं वो आखिरत तक वो जो है वो सब खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएंगे? मेरा सवाल बस इतना था। वो आपको मैंने हर सवाल का जवाब बाइबल में है। यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपनी जान दे दी तो वो तमाम दुनिया के लिए है, शुरू से लेकर आखिर तक है। अब ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आखिर ज़माना में खुदा का तरीक़ाकार बदल जाएगा। जो भी मसीह पर ईमान लाएगा वो नजात पाएगा, चाहे वो इब्राहिम से लेकर आज तक है या आने वाले ज़माने में भी है। ये इंसान का अपना फ़ैसला है, ज़ाती फ़ैसला है। और रोमियो के ख़त में इस बात को बहुत वाज़े खोला गया है, चूँकि खुदा का जो तरीक़ाकार है वो सब कौमों के लिए एक ही है। पतरस कहता है जब गैर कौमों को रूहुल कुद्स का बपतिस्मा मिला, अमाल की किताब मेरा ख्याल 10वां बाब है, तो वहाँ पर लिखा है खुदा किसी का तरफदार नहीं। और यहूदियों की जब बात की जाती है तो पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैं तो इस हद तक हूँ कि मेरा नाम किताब हयात से निकल जाए और वो दाखिल हो जाए। लेकिन वो भी यही कहता है कि उन पर इन्हासार है कि अगर वो अपने दिल को सख्त ही रखेंगे, और लिखा है जब तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, तो वो तो खुदा का कलाम है। और रोमियो के ख़त में बहुत वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो यहूदी जब खुदा का कलाम सुन रहे हैं, जैसे तमाम लोग सुनते हैं, अगर कोई शख्स कबूल करेगा तो ज़रूर वो नजात पाएगा, अगर रद्द करेगा तो वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। मसीह के दौर में भी यहूदी थे जिन्होंने कबूल नहीं किया, तो यीशु मसीह ने उनके बारे में क्या कहा था? क्या यरूशलेम पर जब वो रोए तो उन्होंने कहा कि मैंने चाहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुमने ना चाहा। तो यहूदी तो नस्ल दर नस्ल वही है। खुदा का फजल, खुदा का कलाम, खुदा का तरीक़ाकार ला तब्दील है। तो ऐसा नहीं है अगर कहीं लिखा हुआ है कि इस तरह से खुदा का कलाम यहूदियों के लिए फ़र्क है, दीगर अक़वाम के लिए फ़र्क है, तो कलाम में तो कोई ऐसी बात नहीं मिलती। कलाम में तरीक़ाकार बहुत ही वाज़े है। कलाम खुदा यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, तो उनका तरीक़ाकार भी यकसा है। जी, आपको जवाब मिल गया? आमीन आमीन, थैंक यू पास साहब। मेरी एक दवाइया दरख्वास्त है। मेरे एक कज़न हैं, उनके काफ़ी घरेलू मसाइल हैं, उनके लिए आप छोटी सी दवा कर दीजिएगा। क्या नाम है उनका? जी, उनका नाम खाना है और वो काफ़ी प्रॉब्लम में है। आइए दुआ करते हैं। मेरे साथ हमारे एक मेहमान हैं, पास्टर दर्शन साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, पास्टर दर्शन साहब खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? डॉक्टर डैनियल, सबसे पहले मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं, और आपको और ज़िंदगी टीवी को, जिन्होंने मुझे आपके रूबरू होने का आज मौका दिया ताकि मैं अपनी गुहाई पूरी दुनिया को सुना सकूं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। पास्टर दर्शन, ये हमारे साथ एक कॉलर हैं, गालिबन पाकिस्तान से हैं। उनके कज़न की कुछ ख़ानदानी समस्याएं हैं, मुश्किलात हैं, तो मसीह हल्ले मुश्किलात है। वो कहते हैं कि उनसे दुआ कीजिए, तो मसीह तो हमेशा दुआओं को सुनते हैं। तो आप मुख्तसर तौर पर छोटी दुआ कीजिए ताकि खुदावंद उनके कज़न के जो मसाइल हैं उनको हल कर सके, क्योंकि उसका वादा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तो प्लीज़ दुआ कीजिए इनके लिए। कज़न का नाम क्या है? छाना उन्होंने बताया है, छाना नाम है। तो ओके, आओ हम दुआ में आए। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद हो प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी,
मैं भाई के लिए प्रभु जी और इनके पूरे परिवार के लिए और बहन जैना के लिए प्रभु जी, जो बड़ी मुश्किल में है प्रभु जी। सच में प्रभु तेरी बानी में लिखा है प्रभु जी, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। प्रभु आप हमारे मांगने से पहले हमारी ज़रूरतों को जानते हैं प्रभु। मैं नहीं जानता प्रभु जी जो परिवार है किस मुश्किलात में है प्रभु जी, कौन सी परेशानियों में है प्रभु जी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ प्रभु, कोई भी परेशानी क्यों ना हो प्रभु, कोई भी दुख क्यों ना हो प्रभु, जब तेरा स्वर्गीय हाथ प्रभु जी आता है तमाम बंधन टूट जाते हैं प्रभु जी। मैं भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आज प्रभु जी इस समय परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें परमेश्वर, और अपना हाथ स्वर्ग से बढ़ाएं प्रभु जी। और जितनी भी मुश्किलें प्रभु भाई की जिंदगी में है पिता, यीशु के नाम से उस सभी के सभी मुश्किलें जाती रहें, और प्रभु तेरी आशीष इस परिवार में आए प्रभु। ये हमारी प्रार्थना नहीं बल्कि प्रभु भाई अपनी आंखों से देख नहीं पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बहुत शुक्रिया मोहतरम, आपने हमें कॉल किया, बहुत शुक्रिया। कोई और बात करना चाहेंगे आप? आमीन आमीन, थैंक यू भाई साहब। तो आप बोल कहाँ से रहे हैं, किस शहर से बात कर रहे हैं? जी फैसलाबाद पाकिस्तान से करामत बात कर रहा हूँ। अच्छा करामत साहब, बहुत शुक्रिया, खुदावंद बरकत दे। कॉल करते रहिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। थैंक यू। नाजरीन, हम बात कर रहे थे यीशु मसीह की कबूलियत और रद्द किया जाना, मुखालफत की जानी, ये हमें नज़र आता था और कबूल करने वाले भी साथ ही थे। तो मैंने जो हवाला आपको बताया था लूका की अंजील में से, तो कबूल करने वालों के ताल्लुक से भी मैं अभी आपको बता देता हूं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक डाकू जो मसलूब हुआ उनके साथ, वो जब कहता है तो उसके अल्फाज भी देखते हैं और यीशु मसीह के अल्फाज भी देखते हैं। लूका की अंजील 23वां बाब है और यहाँ पर लिखा है 39वां वर्ष है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिब ही है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। उसने यानी यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और यहाँ पर अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दीगर जितने भी हम देखते हैं इंसान इस दुनिया में आए, आम बात कर रहा हूं, सबके सब उनका जन्मदिन है और वफात की तारीख है। फिर हम देखते हैं कि उनके रोज़े हैं, कब्रें मौजूद हैं। इस्लाम और मसीहत में एक वाहिद हस्ती हमें नज़र आते हैं। कुरान में सूरह निसा में पढ़ लीजिए, सूरह मरियम में पढ़ लीजिए कि वो जिंदा हैं और वो बरज़ख में नहीं है, कब्र में नहीं है। ये मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ। दीगर तमाम तालीम पढ़ लीजिए, एक ही हस्ती जो फरमाते हैं तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, जो कबूल करने वाला है। तो उनकी जो कबूल करना है, उनको खुदावंद नजात दहिंदा मानना है, क्या उसका कोई अरसा मुकर्रर किया गया है? क्या वो सिर्फ माजी की बात ही थी और माजी तक ही महदूद थी, या इसके ताल्लुक से कुछ और बातें भी आज हमें समझनी चाहिए, ताकि जो कबूल करने वाले हैं उनके ताल्लुक से हम देख लें कि ये अरसा कब तक रहेगा। तो आइए इसके लिए देख लेते हैं फरमाने कुरान को, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वो अरसा कब तक है कबूल करने का। तो कुरान अल करीम अदारा इस्लामियात और जो मुतरजम हैं, उर्दू तर्जमा मौलाना फ़तह मोहम्मद ख़ान जालंधरी, और इसमें जो मुख्तलिफ अल्फाज हैं उनके माने भी बयान किए गए हैं। तो आइए ज़रा देख लेते हैं
کہ یسوع مسیح کی مخالفت کرنا اور ان کی پیروی کرنا، ان کے جو تعلیم وہ لائے ہیں، جو پیغام لائے ہیں، جو ان کی ذات کے تعلق سے وابستہ برکات ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں جنت میں ہوگا، کیا وہ محدود تھی یا وہ آنے والے زمانوں میں، وقتوں میں بھی جاری رہیں گی؟ تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران ہے، اور اگر آپ اس کی 49ویں آیت سے آگے پڑھنا شروع کر دیں تو 55 آیت تک آئیں تو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر بات ہو رہی ہے حضور المسیح، جن کو اسلام میں عیسیٰ مسیح کہا گیا ہے۔ تو لکھا ہے، میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر، آگے پڑھ لیجئے ترجمہ اور آپ عربی میں بھی پڑھیے، قیامت تک فائی کو غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ جن باتوں میں تم اختلاف، مخالفت کرنا، رد کرنا، اختلاف کرنا، مختلف سوچ رکھنا، تو یہاں پر لکھا ہے تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا، قیامت تک غالب رکھوں گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تابع داری کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے، یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ کے تابع اول کون ہیں؟ نصارہ تھے، اس دور کی بات کی گئی ہے۔ پیچھے مسلمان ہیں، سو ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ پیچھے مسلمان ہیں، تو اب یہاں پر ادھر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے جو تمہاری پیروی کریں گے، کب تک؟ قیامت تک۔ تو یہاں پر قیامت تک پیروی کرنے والے ہیں، تو یہ قبولیت کا جو سلسلہ ہے وہ قیامت تک ہے۔ تو اب جب ہمیں ان باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک پیروی کرنے والے ہیں، تو قیامت تک مخالفت کرنے والے بھی ہیں۔ تو قبول کرنے والے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مخالفت کرنے والے، آسمان کی بادشاہت سے باہر۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مختلف تعلیمات کی روشنی میں، یا اپنی سوچ کی روشنی میں، یا جو خدا کے کلام سے متصادم باتیں ہیں ان کو قبول کر کے مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن مخالفت کرنے والوں کے لیے بھی مسیح کی محبت، اس کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو آئیے آج ایک ایسے شخص سے ملتے ہیں جو مسیح کی مخالفت کرنے والا تھا، لیکن وہ مخالفت کرنے والا اگر رہتا تو وہ آسمان کی بادشاہت سے، جنت سے باہر۔ لیکن جب وہ آج مخالفت کرنے والا نہیں رہا تو یہ کیسے ہوا؟ آئیے ان سے ہی پوچھتے ہیں۔ جناب پاسٹر درشن صاحب، خوش آمدید۔ یہ بتائیے، جنم کہاں ہوا؟ پریوار کس دھرم میں تھا؟ بچپن کی زندگی کیسی تھی؟ میرا جنم پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوا، اور میرے ممی پاپا شروع سے ہی دھارمک وچاروں والے انسان تھے۔ وہ گردوارے، مندر اور سبھی جگہ جاتے تھے، اور سال میں بہت سارے چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، اور سال میں کئی اپنا دن ایسے بھی ہوتے تھے جیسے سنگرات ہوا تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ لے کے جانا، چڑھاوا چڑھا کے آنا۔ اس کے باوجود بھی بلکہ ہم جیسے دنیا چلتی تھی ان کے پیچھے، ہمارے پوروج چلتے تھے، ویسے ہی ہم ان کے پیچھے چلتے تھے۔ اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں بھی انہی سب کاموں میں ان کے ساتھ چلنے لگا۔ تو مجھے یہ پورا بتائیے، تھوڑا سا یہ بتائیے، چونکہ جتنے بھی آپ نے باتیں کی ہیں، جب ہم ہندو دھرم کی بات کرتے ہیں، مذہب کی بات کرتے ہیں، بہت سے دیوی دیوتا ہیں، اور اب تو جب ہم سکھ دھرم کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کافی گروہ بن چکے ہیں، اور ان گروہوں میں اکثر اکثر نہیں، کبھی کبھی وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر مذاہب میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کس دیوی دیوتا کے یا کس گروہ میں آپ جب گردوارے جاتے تھے، تو تعلیم کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے، میرے ممی پاپا جب گردوارے میں جاتے تھے تو بہت ساری چیزیں رہتی تھی، جیسے کہ صبح
برت جا کے جھاڑو دینا، 4 بجے اٹھ کے جھاڑو دینا اور برتن مانجنا، لنگر دینا، چائے پلانا اور جوتوں کو صاف کرنا اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو مطلب کہ ہم شروع سے ہی کرتے آ رہے تھے۔ بہت شکریہ۔ تو یہ آپ بتائیے، یہ جب لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، کیا ان کو ملے گا؟ تھوڑا سا یہ بتائیے۔ یہ باتیں میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں۔ یس ڈاکٹر ڈینیل، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا، اور میں بھی جب یہ کام کرتا تھا مجھے لگتا تھا کہ شاید میں جنت میں، سورگ میں پہنچ جاؤں گا یہ جی، سب کام کرنے سے۔ یہی بات کہ یس لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے پیچھے یہ کرنے کا۔ تو یہ مجھے بتائیے، کیا کبھی پہلے تو مجھے یہ بتائیے، یہ تو آپ نے بتا دیا آپ یہ کرتے تھے اور مقصد پیچھے یہ تھا۔ اب یہ بتائیے، جب آپ ہندو دھرم کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے خاندان کے ساتھ کن کن دیوی دیوتاؤں کے پاس جاتے تھے اور کیا وہاں پر کرتے تھے؟ اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا وہ جو آپ کرتے تھے اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا تھا؟ ہاں ڈاکٹر ڈینیل، دیکھیں بہت سارے مندروں میں ہم گئے، جیسے کہ درگا کا مندر ہے، وہاں سے ہم سوچتے تھے کہ ان کو جو بلیاں دینے سے ہمارے جو پاپ ہیں وہ کٹ جائیں گے، اور ہمیں شانتی ملے گی، اور بہت سارا پیسہ ہم نے ایسے ان سب چیزوں میں مطلب کہ ویسٹ کر دیا، اور اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی شانتی نہیں ملی۔ جیسے ایک آتمک شانتی ہم چاہتے تھے، ڈھونڈتے تھے، ہمارے جیسے کہ کام کاجوں میں اچھی چاہتے تھے، ویسے کچھ بھی نہیں تھا، بس مطلب کہ ایک خالی یہ ان سب چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے تھے، اور بہت ساری یہ چیزیں ہم لگاتار کرتے جا رہے تھے، جن میں کچھ بھی آنند یا کچھ بھی سکون ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ بہت شکریہ۔ اب آپ یہ بتائیے کہ مسیح تک آنے کا سفر کب شروع ہوا، کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا؟ مسیح میں 2005 میں آیا، اور میرے ایک دوست نے پربھو ییشو کے بارے میں مجھے بتایا، تو ہم چرچ گئے۔ چرچ جانے کے بعد مجھے اچھا لگا، انہوں نے ایک نیو ٹیسٹامنٹ دیا، ہم نے پڑھا، اور بھی زیادہ بہت اچھا لگا۔ جیسے جیسے میں اس کو پڑھتا گیا تو مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں میں جس چیز کی کھوج میں تھا اس چیز کے نزدیک جا رہا ہوں، اور بھی اس چیز کے نزدیکی میں آ رہا ہوں۔ لیکن یہ بھی مجھے پتا چلا کہ آپ مسیح کے بارے میں کچھ اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے۔ اس تعلق سے بھی تھوڑا سا بتائیے کہ چونکہ میں نے شروع میں یہ بتایا کہ قبول کرنے والے بھی ہیں، رد کرنے والے بھی ہیں، مخالفت کرنے والے بھی ہیں اور ساتھ دینے والے بھی ہیں، تو آپ کا رویہ کچھ اس تعلق سے کیسا رہا؟ مخالفت کرنے میں کیا سمجھتے تھے آپ ان کے بارے میں؟ کیا کیا آپ نے مخالفتیں کی، یہ بھی تھوڑا سا بتائیے۔ ہاں ڈاکٹر ڈینیل، مجھے جب میرا دوست یہ سب چیزیں بتاتا تھا مسیح کے بارے میں، جب ہم لنچ ٹائم میں اکٹھے ہوتے تھے، وہ پرارتھنا کرتا تھا، مجھے نا بڑا عجیب لگتا تھا۔ میں اسے بولتا تھا، بھائی جی آپ کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں زبردستی ییشو کا وچن سنانا چاہتا ہے، ہمیں پربھو ییشو مسیح میں لانا چاہتا ہے۔ میں ییشو کا بیروتی تھا، اور میں سوچتا تھا کہ ہمارے بہت سارے گرو، پیر، پیغمبر، دیوی دیوتا ہیں، ہم ان کو چھوڑ کے اس کے انگریزوں کے گرو کے پیچھے کیوں جائیں؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں تھی تو ورود میں ورود کرتا تھا۔ آپ نے کہا کہ آپ ورود کرتے تھے، تو کس کس طرح سے آپ نے ورود کیا؟ یہ تھوڑی سی تفصیل بتائیے، تاکہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اور ہوں جو آج وہ اسی طرح ورود کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے کن کن مخالفتیں کس کس طرح سے آپ نے کی، یہ تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ جیسے کہ کوئی مسیح کا وچن سنا رہا ہے، اسے گالیاں دینا، لڑنا جھگڑنا، اور بھی بہت سی باتیں، بھگا دینا ان کو، فائٹنگ کرنا، مارنا، یہ وہ بہت سارے مطلب کام تھے جو میں ان مسیح کے ورود میں کرتا تھا۔ تو اور کوئی میرا کچھ واقعات ہمیں بتائیے۔ آپ نے کہا کہ آپ گالیاں دیتے تھے جو ان کا وچن سناتے تھے، آپ وچن سنانے والوں کو مار بھگاتے تھے، پیٹتے بھی تھے، تو یہ تھوڑا سا تفصیل بتائیے کیسے کیسے یہ ہوا؟ جب میرا دوست یہ اپنا پربھو کا نام لے کے لنچ پہ بیٹھتے تھے، تو جب دعا کرتا تھا تو میں اس کو کئی بار کک بھی مار دیتا تھا، بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ تو کئی بار میں گالیاں بھی دے دیتا تھا اس کو۔ بلکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے بلکہ جن کے ساتھ میں مل کے پربھو کے وروଧ میں کھڑا ہونا، لڑائی جھگڑے دنگے میں کھڑا ہونا۔ تو مسیحوں کی مخالفت کرنا آپ کی زندگی کا حصہ رہا؟ یس ڈاکٹر ڈینیل۔ تو اب آپ یہ بتائیے، جب آپ اس طرح سے مخالفت کرتے تھے مسیح کی اور مسیح کے لوگوں کی، تو پھر کیا ہوا کہ آپ خود مسیحی ہو گئے، مسیح کے پرچارک بن گئے؟ کیا ہوا یہ تھوڑا تفصیل سے بتائیے۔
ڈاکٹر ڈینیل 2005 میں میرے دوست نے پربھو کے بارے میں مجھے بہت گہرائی سے بتایا، اور اس کے بعد میں چرچ گیا۔ چرچ جانے کے بعد جب میں نے پربھو کے بارے میں معلوم کیا، پڑھنا شروع کیا، وہ جب میں نے پھر اپنے ملک کی جو پرانے گرنتھ تھے ہمارے ہندو اپنا بولتے ہیں ان کو سکھ گرنتھ تھے، ان کے بیچ میں بائی نیم پربھو یسوع مسیح کی بانی کو سنتا تھا، اور مجھے لگا کہ مجھے جاننا چاہیے کہ یہ کس کے بارے میں بولتے ہیں جو اتنے گرنتھ ہیں، یہ عیسیٰ کون ہے جس کے بارے میں ہمارے دھارمک گرنتھ بھی بتاتے ہیں۔ تب اس طریقے سے میرا انٹرسٹ پربھو میں بڑھنے لگا، اور میں نیو ٹیسٹامنٹ اور بھی بائبل کی چھوٹی ملک کی بکس پڑھنے لگا۔ اس کے بعد بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہاں پر میں تمام ناظرین جو سن رہے ہیں جن کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہے، وہ مخالفت کرتے ہیں، ورودی ہیں، وہ مسیح کے لوگوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں، ظلم اور زیادتیاں کرتی ہیں، لیکن آج ان کی گواہی سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ان کی زندگی میں یہ ساری مخالفت تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں اپنی کتابیں ہی پڑھ دوں جس میں ان کی ذات کے تعلق سے لکھا ہوا ہے۔ تو بہت سے لوگ، ابھی میں نے فرمان قرآن آپ کے سامنے رکھا کہ قیامت تک ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے، کسی نے شاید آج تک آپ کو نہ بتایا ہو، تو آج آپ سن رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سورہ مریم اور اس کی 21ویں آیت میں اور اس کی 31 آیت میں حضور المسیح کی ذات کے تعلق سے کون سے بھید کھولے گئے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں سورہ الحدید اس کی 27ویں آیت میں خدا تعالیٰ کیا کر دیتا ہے جب کوئی شخص ان کی پیروی کرتا ہے۔ اور شاید آج پوری دنیا کے لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ بس رہے ہیں، جہاں جہاں لوگ رہ رہے ہیں، معاشروں کا، ملکوں کا برا حال ہے، دنیا کا برا حال ہے، تو کیا کوئی حل ہے جو خدا کرتا ہے؟ سورہ الحدید اس کی 27ویں آیت کو پڑھ لیجئے۔ جب درشن صاحب نے پڑھنا شروع کیا اپنی کتابوں میں سے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں، وہ نیو ٹیسٹامنٹ پڑھنے لگے، وہ انجیل کو پڑھنے لگے، اور وہ مسیح کی ذات کے تعلق سے جو پیغام انسانوں تک پہنچایا گیا ہے خود وہ پڑھنے لگے، تو یہی درست سمت ہے، یہی اصل طریقہ ہے باتوں کو سمجھنے کا، جاننے کا، تاکہ آپ حقیقت سے واقف ہو سکیں۔ تو درشن صاحب، جب آپ نے مسیح کی ذات کے تعلق سے تحقیق کرنا شروع کی تو پھر کون کون سے بھید آپ پر کھلے، اور مسیح کو آپ نے کیسے پھر خداوند اور نجات دہندہ قبول کیا؟ یہ اب تفصیل سے بتائیے، کیسے کیسے یہ بھید آپ پر کھلتے گئے جب آپ نے پڑھنا شروع کیا؟ بہت سے لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو پڑھنے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ آپ کا یہ سفر کیسے شروع ہوا، اور کیسے یہ آپ کو مسیح تک لے آیا تاکہ آپ حقیقت سے واقف ہوں؟ بہت سے لوگ نام مسیح سے واقف ہیں، مسیحوں کے خداوند اور بھگوان کے تعلق سے واقف ہیں، لیکن ان کے وسیلہ سے کیا مل سکتا ہے، کیا انسان پا سکتا ہے، اس سے وہ واقف نہیں ہیں۔ تو آپ بتائیے یہ چمتکار کیسے ہوا؟ ڈاکٹر ڈینیل، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں 2005 میں پربھو یسوع مسیح کو گرہن کیا، اور میں ان دنوں میں بہت زیادہ بیمار ہو چکا تھا، اور میں نے بہت سارے علاج بھی کروائے، بہت سارے باباؤں کے پاس بھی گیا، اور بہت سارے دھاگے تعویذ بھی میں نے اپنی بازوؤں میں، گلے میں ڈالے، تعویذ بھی ڈالے، اور بہت سارا جو جادو ٹونے کرنے والے بتاتے تھے ویسے ویسے میں کرتا بھی رہا۔ بلکہ ہمارا بہت سارا پیسہ ایسے ہی چلا گیا۔ میرے ممی پاپا کی وہ حالت تھی میرے کارن، بلکہ وہ روتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو جب میں نے چرچ میں جانا شروع کیا اور پرمیشور کی آتما نے مجھے سپرش کیا، اور بلکہ جس زندگی کے بیچ میں گزر رہا تھا، وہ زندگی ایک بہت ہی دردناک زندگی تھی، بہت ہی مشکلوں بھری زندگی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں بہت نشوں میں گرا تھا، میں شراب، سگریٹ اور بھی بہت ساری چیزیں کرتا تھا، بلکہ میں سوچتا تھا کہ شاید مجھے سکون آ جائے، پر مجھے کچھ بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے پوتر بائبل کو پڑھنا شروع کیا، اور جب میں نے خدا کے خادموں سے پرمیشور کی بانی کے بارے میں جاننا شروع کیا، انہوں نے میرے لیے پرارتھنا کرنا شروع کیا، اور میری زندگی میں ایک نیا موڑ آنے لگا، اور بہت ساری چیزیں اور بہت ساری برکتیں جنہوں کو میں ترستا تھا میرے پاس نہیں تھی۔ جیسے کہ میں چاہتا تھا کہ بلکہ میں سائیکل سے موٹر سائیکل پہ آؤں، جب میرے گھر اچھا ہو، ہے نا، بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو میں جن سے بلکہ بہت دور تھا۔ جب میں پرمیشور کے ساتھ میں نے اپنا رشتہ پوترتائی سے جوڑنا شروع کیا، تو بہت ساری آشیشیں میری زندگی میں آئی، بہت ساری برکتیں میری۔ بہت شکریہ، آپ نے یہ بات بتائی۔
तो जो पासबान थे उन्होंने मसीह के ताल्लुक से आपको क्या बताया, और फिर आपने अनाजील में क्या पढ़ा कि ये बरक़ात आपको मिलने लगी, ये बताइए थोड़ा सा। उन्होंने मुझे बोला कि देखो, जब हम पापी हैं, जब हम खुदा के सामने अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, बहुत सारे पाप ऐसे हैं जो हम अपने जान पहचान वालों से छिपके करते हैं, अपनी पत्नी से छिपके करते हैं, अपने रिश्तेदारों से छिपके करते हैं, और रात के अंधेरे में छिपके करते हैं। तब भी परमेश्वर की जो नजर है हमें जांचती है, देखती है, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है हमारा जो परमेश्वर वो कभी ऊँघता नहीं। संसार सो जाता है तब भी उसकी नजरें संसार के लोगों पे लगी रहती हैं। मैं भी इन सब चीज में फंसा हुआ था। जब उस खुदा के दास ने बोला कि आप अपने गुनाहों से पश्चाताप करो, अंगीकार करो, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। सच बहुत में जब शुक्रिया, मैंने बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि आप गुनहगार हैं और तमाम इंसान गुनहगार हैं, और यीशु मसीह है जो गुनाहों से छुड़ाता है। चूँकि बहुत से जो मसाइल हैं ज़िंदगी के, उनका सबब ये गुनाह है। तो आपको ये बात कैसे समझ आ गई कि आप गुनहगार हैं और मुझे ऐसी हस्ती की ज़रूरत है जो मुझे इन गुनाहों से निकाल सके, इनको मुआफ़ कर सके? इसकी समझ, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो बताइए, आपको इसकी समझ कैसे आई, ताकि जिन लोगों को समझ नहीं आ रही शायद वो इससे आज समझ जाए। तो ये बताइए आपको इसकी समझ कैसे आई? डॉक्टर डैनियल, देखें कि जब तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें समझ नहीं आएगी। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे जो गुनाह हैं, जो हमारे पाप हैं, हमारे शरीर में दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे हम टीवी स्क्रीन पे एक सीन को देखते हैं, पूरी फिल्म को देखते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारी नजरों के सामने जो भी हमने गलतियां की हैं, जो भी हमने पाप अपनी जिंदगी में किए हैं, जितने भी मतलब कि गुनाह में अपनी जिंदगी में किए, वो हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं, और पवित्र आत्मा में घायल करता रहता है कि आप इनको छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पवित्र है, वो हमें पवित्र बनाना चाहता है। कहीं बहुत ना कहीं शुक्रिया। ये चीजें यस डॉक्टर डैनियल। नाजरीन, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ से आपको पहचान मिलती है। आईना आपकी सूरत आपको दिखाता है, और अगर आप याकूब का ख़त पढ़ें तो वहाँ पर कलाम खुदा को आईना कहा गया है। आईना जैसे आप हैं वैसा ही आपको दिखाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं आईना झूठ नहीं बोलता। तो खुदा का कलाम आईना है, इसमें आपको अपनी असल शक्ल नज़र आती है, और आईने के सामने जब आप जाते हैं तो आप ही होते हैं, पूरा मोहल्ला आपके साथ नहीं होता। आप हैं और आईना है। देखने के लिए आंखों का खुला होना ज़रूरी है। अंधे शख्स को चाहे हज़ारों आईने उसके सामने लगा दें, उसको देखने के लिए आंखों की ज़रूरत है। सो खुदा का कलाम, और जैसे उन्होंने आईना और खुदा का रूह, जो उन्होंने पवित्र आत्मा की बात की है, रूहुल कुद्स की बात की है, यूहन्ना की अंजील के 8वें बाब में लिखा है, आंखें वो खोलता है ताकि हम देख सकें। वहाँ लिखा है रूहुल कुद्स हमारी मदद करता है गुनाहों की पहचान के बारे में। तो अगर कोई शख्स, अगर आप एक साइकिल लेते हैं, असम्बल्ड नहीं है, तो उसके साथ एक किताबचा दिया जाता है जो बताता है कि किस तरह से इसको असम्बल करेंगे, और फिर वो साइकिल इस काबिल होगी कि आप चला सकें, आप उस पर बैठ सकें, काबिल इस्तेमाल हो जाएगी। कहाँ लिखा है? किताबचे में, वो आपको बताता है। इसी तरह से कोई और चीज़ भी, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। खुदा ने भी इंसान किस तरह से उसके हजूर में पाक हो सकता है, किस तरह से उसके हजूर काबिल कबूल हो सकता है,
किस तरह से हमेशा की जिंदगी पाने का हकदार ठहर सकता है और ये जान सकता है, जमानत को पहचान सकता है कि वो हमेशा की जिंदगी पा चुका है। इसके लिए जरूरी है कि हम ये खुदा का कलाम जिसको बाइबल कहा गया है, इसको खोलिए। ये आईना है, ये आपको दिखाएगा, और मदद मांगिए खुदा रूहुल कुद्स से कि वो आपकी मदद करे, आपकी आंखें खोले। तो पास्टर दर्शन साहब, ये आप बताइए कि आपने यीशु मसीह को किस तरह से कबूल किया, कैसे? जब आपको गुनाहों का एहसास हो गया, मैं गुनाहगार हूं, और आपको एहसास हो गया कि मुझे ज़रूरत है कि मेरे गुनाहों से छुड़ाने वाला को हो, और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसका लहू, पहला यूहन्ना का खत पहला बाब और उसकी 7 से 9 आयत तक, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने में सच्चा और आदिल है, और उसका लहू हमारे गुनाहों को धो डालता है, हमें पाक कर देता है। ये कलाम में लिखा है। ये आईना जब आपने देखा तो आप जान गए कि मैं गुनाहगार हूं, मुझे ज़रूरत है निजात दहिंदा की। तो ये गुनाहों की मुआफ़ी कैसे हासिल हुई, ये बताइए, क्या तरीकाकार था? हाँ डॉक्टर डैनियल, देखें, जब तक हम अपने मुंह से किसी भी गलती का अंगीकार नहीं कर लेते, तब तक हमें नहीं मिलती। तो हमें, जबकि हमें इंसान हैं, मनुष्य हैं, खुदा के सामने आके, परमेश्वर की तख्त के सामने आके पवित्रताई से अपने गुनाहों को मान लेना ही इंसानियत है, और परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता बनाना, यही अमल की हम इंसान की जो पहली ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। तो ये रिश्ता कैसे बना, अब ये बताइए, ये रिश्ता कैसे बना? आपने क्या कहा खुदावंद यीशु मसीह को, कैसे उसको पुकारा, क्या अल्फाज थे आपके? ये पूरी दुनिया में ये लोग इस शो को देख रहे हैं और देखेंगे और देखते रहेंगे, चूंकि ये रिकॉर्डेड है और उसके बाद ये चलता रहेगा। मसीह का और आपका रिश्ता कैसे बना? आज बहुत से लोग हैं, गुनाह ने उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है, वो इस जंग में खुद को तन्हा महसूस करते हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। गुनाह ने उनके मुआशरों को बर्बाद कर दिया है, ख़ानदानों को बर्बाद कर दिया है, उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया है। कोई राह उन्हें नज़र नहीं आ रही, गुनाहों से छुड़ाने वाला कौन है? तो आपको ये तजर्बा हुआ है, तो आप ये बताइए कैसे फिर गुनाहों से छुटकारा, रिहाई मिल गई? क्या कहा मसीह से आपने? हाँ डॉक्टर डैनियल, देखिए, जैसे जैसे मैं बढ़ता गया प्रभु में, एक रोज एक दिन वो आया कि मुझे अपने गुनाहों का पश्चाताप करने का मौका मिला। क्या कहा? तो यही बताइए, क्या कहा आपने मसीह को? हाँ, मैं वो ही बता रहा हूँ डॉक्टर डैनियल। मैंने बोला, प्रभु यीशु, मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ। जितने भी गुनाह मैंने अपनी जिंदगी में किए, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, चाहे किसी को सताया हो, चाहे किसी को मारा हो प्रभु, चाहे किसी का जबरदस्ती छीन लिया हो, चाहे किसी की चोरी की हो, चाहे किसी का हक मारा हो प्रभु जी, मैं उन सभी गुनाहों से आज पछताता हूँ। और प्रभु जी, मैं आगे से कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा प्रभु जो मेरी जिंदगी में पहले हो चुके हैं। इस तरीके से मैंने बोल के अपने गुनाहों का पश्चाताप किया, और आज तक फिर मैंने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में मुड़ के नहीं सोचा और ना लौट के गया। तो आपने कहा कि मैं गुनाहगार हूं, मेरे गुनाह माफ कीजिए, ये आपने कहा? yes. तो फिर यीशु मसीह ने आपके गुनाह माफ कर दिए, इसका यकीन आपको कैसे है? सिर्फ ये बताइए कि यीशु ने आपको यकीन है कि आपके गुनाह माफ कर दिए हैं। कैसे है ये यकीन, ये बताइए, उसकी बुनियाद क्या है? डॉक्टर डैनियल, जब मैं ये चीजें बोल रहा था तो मेरा जो शरीर था वो बिल्कुल हल्का हो चुका था। मेरे जीवन पे जो भार रहता था, बल्कि बिल्कुल टूटा रहता था। जब परमेश्वर के सामने मैंने अपने आप के गुनाहों को मान लिया, मैं बिल्कुल ऐसे फ्री हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। मुझे लगा कि वाकई ही आज मैंने वो काम किया है, आज परमेश्वर ने भी मेरे लिए वो काम किया है जिसकी खोज में मैं था। डॉक्टर डैनियल, बहुत शुक्रिया। तो आज जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? कैसे वो यीशु मसीह से गुनाहों की मुआफ़ी पा सकते हैं?
आपने ये भी बताया कि आप बहुत सी बीमारियों में जकड़े हुए थे, शिफा पा सकते हैं। क्या करें वो, ये बताइए पूरी दुनिया को। डैनियल, सबसे पहले तो हम अपने मन को फिराएं। पवित्र बाइबल किसी का धर्म नहीं बदलती, पवित्र बाइबल किसी का मजहब नहीं बदलती, पवित्र बाइबल हमारे मनों को बदलती है। जब हमारे मन बदल जाते हैं, सच में हम परमेश्वर को पा लेते हैं। डॉक्टर डैनियल, बहुत शुक्रिया। ये जो बात कर रहे हैं सूरह अल हदीद उसकी 27वीं आयत पढ़ लीजिए। पूरी दुनिया में बसने वाले मेरे मुसलमान बहन भाई जो इन्होंने बात की है, खुदा ये करता है, इंसान नहीं कर सकता। और तौबा की बात भी आज मैं बता दूं, पूरे दीगर तमाम मज़ाहब में भी अगर देखें तसव्वुर तौबा पाया जाता है, तो तौबा में कितनी चीज़ें शामिल होती हैं ये भी मैं आपको बता दूं। लफ्ज़ आप तौबा सुनते हैं, लेकिन उसमें बाइबल की रोशनी में बता रहा हूं। नंबर 1 होता है एहसास गुनाह। आयात मौजूद हैं, फिर कभी उस पर बात करूंगा। एहसास गुनाह, बंदे को पता चल जाता है कि वो गुनाहगार है, उसे नजात देने वाले की ज़रूरत है। फ़रोज़ुल लुगात में मौलवी फ़रोज़ुद्दीन जब लफ्ज़ ईसा को तर्जमा करते हैं तो उससे मुराद है गुनाहों से छुड़ाने वाला। तौबा में एहसास गुनाह कि मैं गुनाहगार हूँ, मुझे ज़रूरत है नजात दहिंदा की। एहसास गुनाह फिर है इकरार गुनाह, मान लेना, इकरार करना अपनी ज़ुबान से। रोमियो के ख़त में लिखा है इकरार करे ज़ुबान से कोई शख्स, तो एहसास गुनाह है, उसके बाद इकरार गुनाह है, और उसके बाद फिर है तर्के गुनाह। जैसा उन्होंने कहा अब मैं कोई ऐसी बात नहीं करता। और फिर चौथी बात है नजात दहिंदा की पैरवी में नई ज़िंदगी गुजारना। तो अगर कोई शख्स कहता है मैंने तौबा की है और ये 4 चीज़ें उसकी ज़िंदगी में नहीं हैं, तो चाहे वो मंदिर में बैठा है, चाहे गुरुद्वारे में है, चाहे चर्च में है, चाहे वो कोई बिशप है, चाहे वो मिशनरी है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बाइबल कॉलेज में टीचर है, कहीं पर भी है, अगर ये चारों चीज़ें नहीं हैं और ये बाइबल के मुताबिक हैं, आयात मौजूद हैं, तो ये चारों चीज़ें जब ज़िंदगी में आ जाएं तो फिर पास्टर दर्शन बन जाता है। पास्टर दर्शन साहब, मसीह को कबूल करने के बाद अब आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बताइए। पास्टर दर्शन, अब आप यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, अभी मैं अपने प्रभु की सेवकाई में हूँ और लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हूँ। और बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो आज भी, जिनको प्रभु के बारे में नहीं पता, जो आज भी गुलामी की जंजीरों में हैं, आज भी बर्बादी के रास्ते पे हैं, आज भी गुनाह में, आज भी नशों में हैं, उनको परमेश्वर के बारे में बताते हैं और वो अपनी ज़िंदगी खुदा को देते हैं। और वो भी जैसे मैं सुखाड़ा हो चुका हूँ, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में आनंद ढूंढ लिया है, अभी वो भी मेरे साथ आनंद करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको लंबी ज़िंदगी दे। अगर यही आपके पास वक्त हो, मैं आपको 2 मिनट दूंगा, अगर आपके पास यही वक्त हो, खुदा आपको फिर कह रहा हूँ लंबी ज़िंदगी दे, यही वक्त हो, आप पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? 2 मिनट आपके पास हैं, क्या कहना चाहेंगे पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म में हैं, क्या कहना चाहेंगे? डैनियल, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा। सच में वो परमेश्वर इस धरती पे आ चुका है। अब सिर्फ हमें ईमान लाना है, और जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं, निजात के पीछे, वो स्वर्ग की मिरासों के पीछे, बाइबल में लिखा है मेरे पास आओ। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, सच में वो हमें शिफा देगा और हमें जन्नत में ले जाएगा। उसने कहा, देखो मैं स्वर्ग से आया हूँ और स्वर्ग को जाता हूँ, फिर आऊंगा, जो मेरे नाम पे विश्वास करते हैं स्वर्ग में होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने ये पैगाम दिया पूरी दुनिया को। ज़ातुल मसीह खुदावंद यीशु मसीह का ये पैगाम है कि मैं आसमान से आया हूँ और मैं आसमान पर हूँ। जो मेरी पैरवी करता है, जो मुझ पर ईमान लाता है, आज यीशु मसीह की कब्र खाली है, उनका कोई मज़ार नहीं है, जिंदा हैं और वो जल्द आने वाले हैं। और जो उन पर ईमान रखते हैं उनको फिर वो, जैसे पास्टर दर्शन ने बताया, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो अपने लोगों को अपने साथ अपनी बादशाहत में ले जाएगा और उसकी बादशाहत अबदी है, ना ख़त्म होने वाली है। यहाँ पर ज़िंदगी महदूद है, चंद सालों की है, फिर इस दुनिया को छोड़ना है।
لیکن منزل کیا ہوگی یہ بہت اہم بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح مسیحی مانتے ہیں مسلمان بہن بھائی، ان کو نبی مانتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ ان کو استاد یا ایک دیوتا مانتے ہیں، لیکن وہ کیا دیتے ہیں، ان میں کیا ملتا ہے؟ گناہوں کی معافی، جنت کی ضمانت، اور یہ وہ خود زمین پر جب تھے، میں نے لوکا کی انجیل میں آپ کے سامنے پڑھا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آج بھی پاسٹر درشن لوگ یہ سن رہے ہیں، پیغام پہنچ رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ آج بھی مخالفت کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں۔ درخواست ہوگی، آپ کے پاس 1 منٹ ہے، دعا کیجئے کہ جو لوگ مخالفت میں ہیں، رد کرنے والے میں ہیں، خداوند ان پر رحم کرے، ان کی آنکھیں کھولے تاکہ وہ اپنی زندگی آسمان کی بادشاہت میں گزار سکیں۔ خدا ان کی رہنمائی فرمائے۔ 1 منٹ آپ کے پاس ہے، دعا کیجئے گا۔ स्वर्गीय मेहरबान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं स्वामी। प्रभु जी, आज की शाम तेरे सन्मुख आते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भी मेरे बहन भाई प्रभु मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, बहुत सारे लोग आज प्रभु अंधेरे में हैं प्रभु जी, वो देखते तो हैं प्रभु, पर देखते हुए भी प्रभु जैसे कि तेरी वाणी में लिखा है वो अंधे हैं प्रभु जी। आज उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, पवित्र आत्मा जी उनके हृदय से बातें करें प्रभु जी। जो गुनाह भरी जिंदगी प्रभु जी वो जी रहे हैं, उससे लौट आए प्रभु जी। सच में मेरे परमेश्वर तेरी वाणी में लिखा है, तू उद्धार करता है प्रभु जी, तू मुक्ति देने वाला खुदा है, तू फजल करने वाला है, तू शांति और बरकत देने वाला खुदा है प्रभु। जो तेरे ऊपर ईमान लाते हैं प्रभु जी, वो कभी लज्जित नहीं होते प्रभु जी, वो अनंत काल के लिए प्रभु जीवित रहते हैं प्रभु जी। मैं अपने बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो इस चैनल के माध्यम से मुझे देखते हैं प्रभु जी, आज अपना स्वर्गीय हाथ उनके ऊपर बढ़ाएं प्रभु जी, उनके मनों से बातें करें, उनके दिलों से बातें करें प्रभु, क्योंकि शैतान नहीं चाहता प्रभु कि कोई तेरे पास आए प्रभु। तेरी वाणी में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। सच में प्रभु, जो चुने हुए लोग हैं प्रभु, तेरी वाणी में लिखा है प्रभु, तूने आवाज देता है प्रभु, तू हर एक शख्स को आवाज देता है प्रभु, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी भी मजहब का क्यों ना हो, किसी भी देश का क्यों ना हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अपनी आशीष उड़ेले प्रभु जी। सच में प्रभु, जो लोग आज अंधेरे में हैं वो रोशनी में आ जाएं। रोशनी है प्रभु, जो जगत का नूर है प्रभु, सबके ऊपर तेरा नूर जाहिर हो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। पास्टर दर्शन, हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के और आपके भी, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ शरीक हुए। जिसके कान हैं वो सुने कि खुदा का रूह क्या फरमा रहा है। आज आपने यीशु अल मसीह जिंदगियों को किस तरह से अपनी मोहब्बत में, अपनी शफकत में तब्दील कर रहे हैं, और पास्टर दर्शन साहब ने ये भी फरमाया कि मसीह कह रहे हैं, ऐ बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। चाहे ये बोझ झूठी तालीमात के हैं, गुनाहों के हैं, आजमाइशों के हैं, मुख्तलिफ खौफ हैं, गुनाह ने जकड़ा हुआ है, अबलीस ने जकड़ा हुआ है, मसीह आज़ाद कर सकते हैं। फैसला आपका है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल। बहुत शुक्रिया।